Almighty God, who is most beneficent, most merciful. Dear student, today you people will learn what is criticism, what is literary criticism, and what is literary theory. What is theory, what is literary criticism, and what is literary theory. We'll see what is structuralism, what is post structuralism, what is deconstruction. Before that, as we studied about there is a modernist movement and then postmodernist movement, same way we have colonial literature, then post colonial literature. In the same way we have structuralism and then post structuralism. It means structuralism is something that is a reaction to structuralism. Post structuralism is something that is a reaction of the structuralism. Same way modernist literature, then we have a postmodernist literature. The writer like the modernist literature and postmodernist literature, they are quite different from each other. They have different approach, ideology, and to deconstruct literature with their own perspective. Same way we say, see, writer like a structuralist, they are having structuralist approach, they are quite different. Post-structuralist, they gotta believe we should deconstruct literature, a piece of genre, a piece of literature, a piece of poem, or a piece of text by just unfolding something, deconstructing something, analyzing something, and then reach the conclusion. But like structuralists, they want that we see thing with respect to structure. We don't need to deconstruct the structure in a way to understand. But post-structuralists and deconstructionists, they say that we have to deconstruct. We have to deconstruct brick by brick and then reconstruct. First of all, we should deconstruct. Then we try to reconstruct by doing deconstruction. Because once you able, what is the structure of this, what is the structure, how it is formed, how it is compiled, how is constituted, by reconstituting, reinterpretations, all these things give you a new meaning. Doubt is the origin of knowledge. So like the quotation can be applied over here. So let's see. I want to teach you what is literary theory and what is literary criticism. So what is criticism? Is it just to criticize something or it is something more? Criticism का मतलब होता है art of evaluation, judging, interpreting, analyzing, and evaluation of piece of literature, evaluation of piece of literary genre or literature or anything, painting, art, etc. जब आप किसी चीज़ को evaluate करते हैं, उसको evaluate कर रहे हैं, उसको analyze कर रहे हैं, उसको reinterpret कर रहे हैं, deconstruct कर रहे हैं और comment देते हैं, निचोड़ देते हैं अपना, वो criticism है. तो mostly जो prominent critic हैं, like A.C. Bradley है, ठीक है, और बड़े बड़े जो critics हैं, T.S. Eliot है, मैथ्यू आर्नल्ड है, जॉनसन है, पॉप है, तो इस तरह के जो बड़े बड़े क्रिटिक्स थे वो कमेंट करते थे, पूरे पीस ऑफ लिटरेचर को पढ़ते थे. एक पूरा जो बॉडी है लिटरेचर का, किसी खास राइटर का, वो पूरा लिटरेचर उसको पढ़ते और उसके बाद उसके ऊपर कमेंट कर देते, और जैसे ही वो कमेंट करते तो उनके कमेंट से वो और फ्लॉरिश हो जाता. मतलब जॉन डन एक पोएट था और जैकोबियन पोएट था, हमने इसको पढ़ा. जॉन डन ने अपनी एज में कोई इतनी फेम हासिल नहीं की और गोशा गुमनामी में पड़ा रहा. मतलब कोई बंदा इसको नहीं जानता था. ही वॉज नॉट अ ग्रेट पोएट. ये एक मेटाफिजिकल पोएट था.
लेकिन जैसे टी एस इलियट आया मॉडर्न एज में, टी एस इलियट ने इसको स्टडी किया। टी एस इलियट ने इसको स्टडी किया, उसने कहा जॉन डन तो बहुत बड़ा पोएट है। उसने कहा यूनिफिकेशन ऑफ थॉट, यूनिफिकेशन ऑफ थॉट पाई जाती है और यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, सेंसिबिलिटी भी है इसके वर्क में। वो माइंड से पोइट्री करता है और माइंड और हार्ट को मिला के इनकी यूनिफिकेशन पेश करता है और बड़े हेट्रोजन्स आइडिया को, डिफरेंट और वेरियस आइडिया को कैसे यूनिफिकेशन ऑफ थॉट के ज़रिए रिप्रेजेंट करता है, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी है, और इसके वर्क के अंदर एक माइंड के ज़रिए पोइट्री है, थॉट के ज़रिए पोइट्री है। पोइट्री इज नॉट टर्निंग लूज ऑफ इमोशन, रादर एस्केप फ्रॉम इमोशन। It is not a spontaneous overflow of powerful feeling, rather it is escape from powerful feelings. Emotion से escape करना पोइट्री है, ना कि उसका टर्निंग लूज ऑफ इमोशन है पोइट्री। उसने उसको क्रिटिसाइज किया था वर्ड्सवर्थ को कि वो जस्ट अपनी फीलिंग लिखते हैं रोमांटिक पोइट्स, लेकिन पोइट्री नहीं कर रहे। अच्छा पोइट है तो वो जॉन डन है, जो जानता है कि यूनिफिकेशन ऑफ थॉट कैसे करना है, कैसे डिफरेंट वेरियस आइडिया को इकट्ठा करके उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, जॉन डन बहुत अच्छे से जानता है। लेट्स सी, अगर देखा जाए तो जैसे रोनल बार्थ है, फ्रेंच वर्ड में अगर जैसे जो लास्ट वर्ड होता है वो अमूमन जो होता है वो प्रोनाउंस नहीं करते, हम इसे रोनल्ड नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे रोनल बार्थ। रोनल बार्थ ने कहा था कि हम सिमुलेशन पे बिलीव रखते हैं। उसने स्टडी किया था इसको, यानी माइकल फूको को देखें आप, जैक लेखान को देखें, यानी मैं आपको बता रहा हूँ इनके वर्क देखें कि दे वर नॉट प्राइमरली मैन ऑफ लिटरेचर, बट देयर थीरीज दे ओवरऑल दे आर अप्लाइड ऑन लिटरेचर। जो उन्होंने थीरीज पेश की आज भी आप अप्लाई करते हैं लिटरेचर पर। रोनल बार्थ हो, उसने सीमियोलॉजी पे वर्क किया है, सिमुलेशन पे वर्क किया। सिमुलेशन मीन कि जो रियलिटी आपको टेलीविजन पे दिखाई जाती है, आप वो क्या होती है, पिक्चर फॉर्म में होती है, आप उसको ही रियलिटी समझते हैं। आपने कभी उसके ऊपर रिसर्च की है कि वो क्या आपको दिखा रहे हैं? जो आपको वहाँ पे कोई लेडी नज़र आती है जिसने बहुत ज़्यादा मेकअप किया होता है, क्या वो उतनी खूबसूरत है रियलिटी में जितनी दिखाई जाती है? क्या एडवर्टीजमेंट में आपको एडवर्टीजमेंट में जो कुछ दिखाया जा रहा है, क्या उसके बैक कोई रियलिटी है कि या आप ब्लाइंडली जो आपको एड्स आती हैं आप वही बाय कर लेते हैं प्रोडक्ट? ऐसा होता है ना। हमारी रियलिटी कौन फॉर्म करता है? मीडिया, टेलीविज़न, लेटेस्ट सोशल मीडिया। तो हम बेसिकली सिमुलेशन, सीमियोलॉजी के ऊपर, उसने कहा रियलिटी आजकल ये है। रोनल बार्थ का बहुत वर्क है साइन के ऊपर, मीनिंग्स के ऊपर, साइंस जो अपना मीनिंग कैरी करते हैं और डिफरेंट रिलेशन बिटवीन सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड मीनिंग के दरमियान। तो ये सारे जो राइटर थे कि दे वर नॉट मैन ऑफ लिटरेचर, रादर they belong to different fields, right? Some were they were expert in archaeology, some were expert in art, painting, some were expert in social sciences. So they were giving their ideas and meaning, and overall these idea, meaning, theories, they were applied on the literature. Even फर्डिनेंड डी सॉशर ने, जो कि एक लिंग्विस्ट था, स्विस बोर्न लिंग्विस्ट है, और उसने स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक का कंसेप्ट दिया, तो वो कंसेप्ट जो है वो लिटरेचर पे भी अप्लाई होने लगा। रशियन फॉर्मलिज्म और बहुत सारे जो क्रिटिसिज्म है, बहुत सारे क्रिटिक्स जो हैं उन्होंने उस आइडिया को अप्लाई किया। इट मीन के बहुत सारे लिटरेचर के अंदर बहुत सारा ऐसा वर्क अप्लाइड किया है। हम लोगों ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक लिटरेरी थीरीज़ और ये जो थीरीज़ पेश की थी, इन थीरीज़ को अप्लाई किया है। इस एज को कहते हैं एज ऑफ थीरीज़। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं एज ऑफ थीरीज़।
और उसमें कुछ राइटर्स हैं जिनके मैं नाम अभी आपको बता देता हूँ, वो नोट कर लें जो हम स्टडी करेंगे। हम रोनाल्ड बार्थ को स्टडी करेंगे, फर्डिनेंड डी सॉशर को स्टडी करेंगे, हम माइकल फूको को स्टडी करेंगे, जैक लैकन्स को स्टडी करेंगे और ब्रॉडरियर्ड, जीन ब्रॉडरियर्ड, इनको हम स्टडी करेंगे। जैक डेरिडा को स्टडी करेंगे जिसका वर्क है डीकंस्ट्रक्शन का। Dear student friend follower, you are listening to the voice of Sarana. Our contact number is 0305631964. Don't forget to subscribe and like our channel, the ESL Academy. Since we are going to cover literary theory, literary criticism, as we finished history of English literature. In history of English literature, you know that we have covered, in series we have covered all the ages of literature. We discussed in our lecture Anglo-Saxon period, Norman period, and pre-Chaucerian period, before Chaucerian period, and after Chaucerian period. And we also studied medieval age, Elizabethan age, Renaissance age, and then Interregnum age, age of Pope, age of Johnson, age of Dryden. We studied Victorian age, we studied Milton age, we studied also about modern age, postmodern age. So these lectures in series we've discussed, and we covered each and everything, and we are covering respectively their writers as well. Now we are going to study age of theories. एज ऑफ थीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म को, हम डिस्कस करेंगे क्रिटिसिज्म को, न्यू क्रिटिसिज्म को, रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी को, और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म को, डीकंस्ट्रक्शन को. सी दीज आर द थीरीज एंड दीज आर गिवन बाय सर्टन राइटर्स एंड थीरिस्ट. वॉट एवर दे आर, दे विल बी डिस्कस्ड इन आवर लेक्चर्स. सो लेट्स सी. फिर हमारे पास एक और राइटर है लेवी स्ट्रॉस, हम इसको भी डिस्कस करेंगे. Before discussing all these writers, I want to discuss about literary theory. What is literary theory? Literary theory और literary criticism में क्या फ़र्क है? लिटरेरी क्रिटिसिज्म में तो हम क्या करते हैं कि किसी लिखे हुए वर्क को क्या करते हैं, उसको उसकी एवेल्यूएशन देते हैं. ये एक एनालिसिस है. लिटरेरी क्रिटिसिज्म एवेल्यूएशन है, इंटरप्रिटेशन ऑफ लिटरेचर है. एवेल्यूएशन है, जज करना है, इंटरप्रेट करना है. किसी दिए हुए लिटरेचर को आप एवेल्यूएट कर रहे हैं, आप उसको मार्क दे रहे हैं, आप उसकी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, आप उसको रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, उसको एनालिसिस कर रहे हैं. इट इज़ व्हाट नोन एज लिटरेरी क्रिटिसिज्म. बट लिटरेरी थ्योरी लिटरेरी क्रिटिसिज्म नहीं है, रिलेटेड है, बट इट इज़ समथिंग डिफरेंट. क्योंकि इसमें बॉडी ऑफ नॉलेज जो है आपको वो थीरिस्ट बताएगा कि ये नॉलेज है, और उसके अकॉर्डिंग ये फिर अप्लाई होती है सर्टन वर्क पे. देखें फिर, लिटरेरी थ्योरी इज अ बॉडी ऑफ आइडिया एंड मेथड. यानी ये क्या है, बॉडी ऑफ नॉलेज है या बॉडी ऑफ आइडिया है, और ये किसी ना किसी थीरिस्ट ने आपको दिया है. ठीक है. We use in a practical reading of literature. और कहते हैं कि लिटरेरी थ्योरी जो है वो रेफर करती है नॉट टू मीनिंग ऑफ द वर्क ऑफ लिटरेचर. वी रेफर नॉट टू द मीनिंग ऑफ वर्क ऑफ लिटरेचर बट टू थ्योरीज दैट रिवील व्हाट लिटरेचर इज. इसके अंदर मीनिंग नहीं, आपने कुछ बताना कि इसका भाई ये मीनिंग बनता है, बल्कि आपने क्या बताना है इसके अंदर, थ्योरीज दैट रिवील लिटरेचर कैन मीन. जो थ्योरी ने रिवील किया हुआ है, पहले स्टडी हुई है, उसकी एक ख़ास थ्योरीज बनी है, थ्योरीज ने जो थ्योरी रिवील्ड लिटरेचर, वो हम डिस्कस करते हैं. रिवील्ड द मीनिंग ऑफ लिटरेचर, यानी आपने इस लिटरेरी थ्योरीज के अंदर आपने कोई मीनिंग नहीं देना अपनी तरफ से, बल्कि जिन थ्योरिस्ट ने उसको स्टडी करके थ्योरी पेश की है और उसका मीनिंग जो है उन थ्योरीज को रिवील्ड किया हुआ, उनका मीनिंग आपने वहाँ से लेना है.
और ये थीरीज जो हैं वो सर्टन वर्क के ऊपर अप्लाई होती हैं किसी लिटरेचर को डिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए, उसका एनालिसिस देने के लिए यूज़ करते हैं मोस्टली राइटर या हमारे जैसे कोई क्रिटिक या हमारे जैसे पढ़ने वाले उसको यूज़ कर लेते हैं इन थीरीज को। ये थीरिस्ट ने दिया होता है। सो लेट्स सी। हमारे पास राइटर है रोनाल्ड बार्थ। रोनाल्ड बार्थ पैदा हुआ है, ये ज़रा देखें, 12 नवंबर 1950 और 26 मार्च 1980 में डेथ हुई है। वॉज अ फ्रेंच लिटरेरी थीरिस्ट, एसिस्ट, फिलासफर, क्रिटिक एंड सिमोटिशियंस। सिम्योटिक्स का वर्क जो है, सीमियोलॉजी के ऊपर इसने वर्क किया है। साइन और उनके मीनिंग्स में इसका बहुत ज़्यादा वर्क है। स्ट्रक्चरलिज्म, सिम्योटिक्स, सोशल थीरीज, डिज़ाइन थीरीज, एंथ्रोपोलॉजी, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर इनका वर्क है। कुछ राइटर्स थे, जैसे बहुत सारे राइटर्स थे, जैक डेरिडा थे, जैसे माइकल फूको है, जैसे ये रोनाल्ड बार्थ है, ब्रॉडरलियर्ड है। इस तरह के बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल थे जिन्होंने पहले स्ट्रक्चरलिज्म की सपोर्ट की थी, लेकिन इन्होंने ही स्ट्रक्चरलिज्म को डिस्कार्ड कर दिया था बाद में। दे चेंज देयर व्यू। जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे नॉलेज आता है तो नॉलेज के रिएक्शन में उसके हमने देखा कि और नॉलेज आ जाता है। तो ये स्ट्रक्चरलिज्म जो था उसका ही रिएक्शन था पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। मैं अभी आपको एक मिसाल से समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। तो ये 1915 को पैदा हुआ और 1980 को इसकी डेथ हुई है। लिटरेरी थीरिस्ट था। देखें, ये थीरिस्ट था और ये स्पेशली कोई लिटरेचर का थीरिस्ट नहीं है कि ये लिटरेचर का बंदा था। नो, जर्नल थीरी इसने पेश की है। ये सोशल साइंस के बंदे थे, राइटर थे। थीरिस्ट था, एसिस्ट था, फिलासफर था, क्रिटिक था और सिमोट्रिशियन था। और बार्थ आइडिया एक्सप्लोर द डाइवर्स रेंज ऑफ द फील्ड, इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ मैनी स्कूल ऑफ थीरीज इंक्लूडिंग द स्ट्रक्चरलिज्म, सिम्योटिक्स, सोशल थीरीज, डिज़ाइन थीरी, एंथ्रोपोलॉजी एंड स्ट्रक्चर। हम स्टडी करेंगे माइकल फूको को, डेरिडा को, जैक लेखान को, ब्रॉडरलियर्ड को, लेवी स्ट्रॉस को, इस तरह के राइटर्स को। फर्डिनेंड डी सॉशर। लेट्स डिस्कस अबाउट द फर्डिनेंड डी सॉशर। फर्डिनेंड डी सॉशर 1857 और 1913 स्विस बोर्न लिंग्विस्ट है और बोर्न एजुकेटेड इन जिनीवा। In 1876, he went to the University of Leipzig, where he received doctorate in 1881. इसने कोई बुक नहीं लिखी थी, इसके स्टूडेंट थे। उन्होंने मिल के इसके वर्क को, जो ये डिफरेंट जगह पे फुट नोट्स इसके बने हुए थे, उनकी बुक को अरेंज कर दिया। जो इसके नोट्स थे उसको बुक में अरेंज कर दिया था। नाम है फर्डिनेंड डी सॉशर। फर्डिनेंड डी सॉशर ने कंसेप्ट दिया स्ट्रक्चरलिज्म का। फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक जाना जाता है। इससे पहले लिंग्विस्टिक को इस तरह से नहीं देखा जाता था। इसने कहा कि लैंग्वेज जो है उसकी एक बॉडी होती है, ठीक है। लैंग्वेज अपनी विद इन द बॉडी जो है उसका एक अपना स्ट्रक्चर है, सिग्निफायर और सिग्निफाइड और मीनिंग, और उनके साथ क्या होते हैं, उनके मीनिंग यानी साउंड और उसके साथ उसके मीनिंग के साथ एग्जिस्ट करती है लैंग्वेज। लैंग्वेज को आप सेपरेट नहीं देख सकते, इसको आप एक स्ट्रक्चर के साथ देखते हैं। इसका एक अपना ख़ास स्ट्रक्चर है। मतलब कि लैंग्वेज को देखा जाए तो लैंग्वेज में होता है साइंस, और साइन जो है अपना मीनिंग जो है कैरी करता है। जो साइंस होते हैं वो अपना एक मीनिंग कैरी करता है, उसका एक अपना मीनिंग होता है। मतलब कोई भी साइन मैं आपके सामने अगर लिख देता हूँ तो वो अपना मीनिंग कैरी करता है। एक होता है, उसने कहा सिग्निफायर, एक होता है सिग्निफाइड। तो ये इसके ऊपर कंसिस्ट करता है। क्या मिसाल के तौर पर आप, मैं यहाँ कोई मार्क बनाता हूँ, ये प्लस, और मैं यहाँ पे चांद बना देता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, कोई नेम। अब ये जो लिखा हुआ है ये टोकन है, ये सिंबल है, ये एम्बलम है, ये कोई ख़ास निशान है, ये ख़ास कोई मार्क है, ये एक सिग्निफायर है।
और इस सिग्निफायर का एक ख़ास मीनिंग है। ये हर कल्चर में डिफरेंट हो सकता है, हर शख्स के मेंटल इमेज जो उसकी बनेगी, हर शख्स के, हर इंसान के, हर इंडिविजुअल के, हर कल्चर के, हर सोसाइटी की, हर पर्सनैलिटी की, हर कंट्री या नेशन या कौम या पीपल के यहाँ डिफरेंट साउंड का मीनिंग बन सकता है। साउंड हो, इमेज हो, टेक्स्ट हो, मार्क हो, कोई टोकन हो, कोई एम्बलम हो, कोई पोस्ट हो, कोई पिक्चर हो, जो भी उसकी पिक्चर, जो उसका मेंटल इमेज सिग्निफाइड बनेगा वो डिफरेंट है। मेरे लिए क्रॉस जो है, प्लस जो है, और मानी हो सकता है, लेकिन एक क्रिश्चियन के लिए और, तो इसका सिग्निफाइड डिफरेंट होगा। अब इसी की बुनियाद पे जैक डेरिडा जो है इसी की बुनियाद पे रिजेक्ट करेगा कि स्ट्रक्चरलिज्म जो अप्रोच थी वो ठीक नहीं है। हमने चीज़ों को देखना है किससे, डीकंस्ट्रक्शन के थ्रू, कि कोई चीज़ भी कांस्टेंट नहीं है। कहता है ये वेस्टर्न फिलॉसफी हो या जो हिस्ट्री है ये कांस्टेंट नहीं है, हर दौर में कहता है कि ये डिफरेंट थी फिलॉसफी। हर इंसान जो है वो इंडिविजुअली दूसरे से डिफरेंट है, कोई सेम नहीं है, चेंजिंग है, डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, प्रोग्रेस है। और हम चीज़ को देखेंगे, जैक डेरिडा ने कहा, किस तरह से मीनिंग फाइंड करेंगे, डीकंस्ट्रक्शन के थ्रू, डिफरेंस के थ्रू, डीकंस्ट्रक्शन के थ्रू। एक जो है वो दूसरे से डिफरेंस है, एक जो है गुड है तो बैड है, एक जो है अच्छा है तो बुरा है। हम उसको बाइनरी एक डिफरेंस के थ्रू देखेंगे चीज़ों को। हम चीज़ों को कैसे देखेंगे, डीकंस्ट्रक्ट करके उसका पूरा स्ट्रक्चर जो है उसे क्या करेंगे, डिसेंबल करेंगे, उसको हम उसको तोड़ेंगे। उसको तोड़ने के बाद देखेंगे कि ये कैसे फॉर्म हुआ, ये फिलॉसफी कैसे फॉर्म हुई, ये आइडियोलॉजी कैसे फॉर्म हुई, ये आइडिया कैसे फॉर्म हुआ। हम उसको डीकंस्ट्रक्ट करेंगे, रिकंस्ट्रक्ट करेंगे अपनी ज़रूरत के मुताबिक, और उससे रिक्वायर्ड मीनिंग फाइंड करेंगे। देयर इज़ नो सेंटर एट ऑल एंड वी हैव टू डीकंस्ट्रक्ट टू फाइंड द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। इसका क्या स्ट्रक्चर है, यानी स्ट्रक्चरल अप्रोच को ही डीकंस्ट्रक्शन के थ्रू देखा जा रहा है, एनालिसिस के थ्रू। डीकंस्ट्रक्शन का मतलब एनालिसिस होता है। तो दूसरा राइटर है हमारे पास माइकल फूको, वाज बोर्न इन, ये एक फ्रांस में पैदा हुआ, और ये क्या था, ये एक क्रिटिक था, सोशल क्रिटिक था। वो कहता है कि इंसान जो है, इंसान का और पावर का रिलेशन बहुत इंटीमेट रिलेशन है। माइकल फूको कहता है कि नॉलेज और पावर, ये दोनों कहता है कि बड़े इंटीमेट रिलेशन है, इनके बड़े क्लोज रिलेशन है। मतलब आप इसमें देख सकते हैं, मैं इसमें अक्सर मिसाल देता हूँ कि इंडिया के अंदर जब मुसलमान आए थे तो उनकी लैंग्वेज पर्शियन थी, उन्होंने पर्शियन लागू कर दी, ठीक है। जब इंग्लिश पीपल आए तो उनकी लैंग्वेज इंग्लिश थी, उन्होंने इसको रिप्लेस करके इंग्लिश लागू कर दी। तो वो कहता है नॉलेज एंड पावर, लैंग्वेज एंड पावर, knowledge and power, language and power, they enjoy intimate relation between each other. They got a relation. Whoever in a power, he will ultimately impose his her language on certain countries. जहाँ कब्जे करते हैं वहाँ पे आप देखें लैंग्वेज उनकी इम्पोज हो जाती है, लोग बोलना शुरू कर देते हैं। अगर उनको नहीं भी आती तो वो सर्टन वर्ड्स जो हैं वो खुद ब खुद सीख जाते हैं। मेजॉरिटी हमेशा मिनॉरिटी को क्या कर लेती है, ओवरलैप कर लेती है, मैनिपुलेट कर लेती है, कंट्रोल कर लेती है, डायरेक्ट कर लेती है, उनको अपने इन्फ्लुएंस में ले लेती है। आप भले किसी भी अकीदा से में रहते हों, जोन सा भी आपका अकीदा, आप ज़रा चले जाएं, आपके अकीदा को चेंज कर देंगे, आपका क्रीड चेंज हो जाएगा, आपका बिलीव चेंज हो जाएगा, आपकी बहुत सारी इंट्रैक्शन की वजह से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो हमेशा क्या रिप्लेस कर लेता है, जो पावर में होता है। कौन रिप्लेस कर लेता है, मिनॉरिटी को मेजॉरिटी। नॉलेज, पावर जो है वो डिटरमिन करता है कि क्या गुड है, क्या बैड है, क्या अच्छा क्या बुरा है, क्या मीनिंग क्या है। तो मीनिंग लैंग्वेज का कौन, माइकल फूको कहता है, कौन करता है डिटरमिन, कौन करता है उसको, उसका तयन कौन करता है, इट इज अ पावर। हूएवर इन द पावर, ही और शी विल इम्पोज लैंग्वेज, अपना कल्चर, अपने मीनिंग, अपनी लैंग्वेज, अपनी पावर वो इम्पोज करके मीनिंग चेंज कर लेगा। तो वो क्या कहता है कि इट इज़ अल्टीमेटली पावर दैट डिटरमिन्स मीनिंग
माइकल फूको। ये उसकी पिक्चर है, माइकल फूको, इसका याद रखें कॉल, इसका कोट। प्रोफेसर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द सिस्टम ऑफ थॉट्स अंटिल हिज डेथ। तो ये प्रेस्टिजियस कॉलेज डी फ्रांस वेयर ही प्रोफेसर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ सिस्टम ऑफ द थॉट्स अंटिल हिज डेथ। माइकल फूको के बारे में कहा जाता है कि ही वॉज अ होमोसेक्सुअल, ही वॉज फेवरिंग दिस एक्टिविटी। जैक लैकान्स जो है वॉज बोर्न इन द पेरिस, ये पेरिस में पैदा हुआ है। और लैकान्स हैड 3 चिल्ड्रंस। लैकान्स अटेंडेड द कॉलेज Stanislas between 1907 and 18. Interest in philosophy led to his preoccupation with the work of Spinoza, outcome of which his abandonment of the religious faith. अब देखें, मोस्टली आपको जो इस तरह के फिलासफर होंगे वो अथीस्ट होंगे। अथीस्ट का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। ये फिलासफर है ये भी, और ये क्या है? आपको अथीस्ट मिलेंगे। और फिलासफर जो हैं उनका तो काम होता है ना कि वो फिलासफी के बारे में, विजडम के बारे में बात करें, लेकिन इनके वर्क आपको देखें कि कोई आर्कियोलॉजिस्ट होगा, कोई फिलासफर होगा, कोई मतलब सोशल साइंस से रिलेटेड होगा। अब वो बंदे जो हैं वो लिटरेचर के ऊपर, उनकी थ्योरी लिटरेचर के ऊपर अप्लाई हो रही हैं। लिटरेचर जो है वो डिफरेंट सोर्सेज से अब उसकी इंटरप्रिटेशन हो रही है, चाहे कोई फिलासफर है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, आर्कियोलॉजिस्ट है, या वो कोई लिंग्विस्ट है, या वो कोई और सोशल साइंस से रिलेटेड है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, पॉलिटिकल आइडियाज़ से बंदा रिलेटेड है, या वो वैसे पॉलिटिशियन है, वो कमेंट कर रहा है। और हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं आपस में रिलेटेड होती हैं। लैंग्वेज एंड पावर, पॉलिटिक्स कौन डिसाइड करेगा? पावर डिसाइड करेगी। कल्चर कौन डिसाइड करेगा? पावर डिसाइड करेगा। अच्छा, एक और बंदा आपको बताता हूं, नाम है एडवर्ड सईद। एडवर्ड सईद ने बुक लिखी है कल्चर एंड एम्पीरियलिज्म। एडवर्ड सईद बताता है कि कल्चर जो है वो हर कल्चर, हर रीजन का, हर इलाके का डिफरेंट होता है। उसने डिस्कस किया है ओरिएंटलिस्ट और ऑक्सीडेंटलिस्ट। उसने कहा ऑक्सीडेंट कंट्री और ओरिएंटलिस्ट जो हैं, ओरिएंट कंट्री जो हैं और ऑक्सीडेंटलिस्ट जो हैं, या ओरिएंट और ऑक्सीडेंट कंट्री जो हैं, ये डिफरेंट है। ये हैं डेवलप कंट्री और ये हैं जिनके ऊपर इन्होंने कब्जा किए रखा है। तो कहता है कि जो ऑक्सीडेंट कंट्रीज़ होते हैं वो ओरिएंट कंट्री को, जो ओरिएंटलिस्ट उन्होंने हायर किए होते हैं अपने लोग, और वो उनसे लिखवाते हैं। ऑक्सीडेंटल कंट्री क्या लिखवाते हैं? वो कहते हैं कि लिखो इनके बारे में, ये लोग अपना फ्लैश खा जाते हैं, ये अपने जैसे ह्यूमन को खा जाते हैं, इनके अंदर ये विशियस हैं, ये एनिमल्स हैं, हमें हक हासिल है कि हम इनको ठैम करें। ये एनिमल्स हैं। इंसान जो है वो एक एनिमल है, वो कहते हैं कि सोशल एनिमल है, जैसे अरिस्टोटल ने कहा था। तो हमें हक हासिल है कि हम इनको ठैम करें। हम इनसे ज़्यादा रिफाइंड हैं, हम इनसे ज़्यादा अच्छे लोग हैं, रिफाइंड हैं, सिविलाइज्ड हैं। हम जाएंगे इनके कंट्री में और इनको रिफाइंड करेंगे। अगर आपने थिंग्स फॉल अपार्ट बाय शिनोवा एचबी पढ़ा हो तो वो भी यही कहता है हम अपने एक डिस्टिंग्विश्ड कल्चर के साथ, हम अपने एक डिफरेंट कल्चर के साथ रह रहे थे। इंग्लिश पीपल वहाँ पे आए और हमारे कल्चर को इन्होंने डिस्ट्रॉय किया और उसको इन्फीरियर करार दिया। कैसे करार देता? कौन सा ऐसा आला है, कौन सा ऐसा टूल है जिसके ज़रिए आप ये माप सकते हैं कि इसका कल्चर मुझसे अच्छा है और मेरा बुरा है या उसका अच्छा है? तो एडवर्ड सईद भी यही पॉइंट उठाता है कि किसी ख़ास इलाके के लिए कोई चीज़ बुरी हो सकती है, लेकिन उस इलाके के लिए, उस एरिया के लिए वो परफेक्ट है। उसने फिर मिसाल दी कि प्रोफेसर को आप ज़रा इधर ले जाएं और उधर ले जाएं। वो यहाँ पे किसी औरत के बारे में लिखेगा कि ये बड़ी एंशियंट एज में रह रही है, किसी मिडीवल एज में रह रही है, जिसने अपने बॉडी को कवर किया हुआ है, जिसने कोई मिनी ड्रेस नहीं पहना हुआ, शॉर्ट ड्रेस नहीं पहना हुआ, वो रिफाइंड और कल्चरल लेडी नहीं है उनके मुताबिक। अब उधर से कोई मिनी ड्रेस से इधर आ जाए, शॉर्ट ड्रेस से, हम कहेंगे कल्चरल लेडी नहीं है, ये कोई प्रोस्टिट्यूट है, उसको और ही नज़रों से देखा जाएगा। तो दिस इज व्हाट इज दिस?
हर कल्चर कहता है अपने इलाके के रीजन और अपने कंट्री और एरिया वाइज वो परफेक्ट होता है, चाहे वो उधर वेस्टर्न कल्चर हो या हमारा इधर पैलेस्टीनियन कल्चर हो, तो वो उसको कंपैरिजन फील करता है। ओरिएंटलिस्ट और ऑक्सीडेंटलिस्ट जो कंट्रीज़ हैं उनमें दोनों में डिफरेंस उनके कल्चर और डिफरेंट बताता है। अब देखें, आप लिटरेचर को नए तरीके से देखा जाएगा। उसने एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया, किसमें? वो रेवोल्यूशन लेकर आया कल्चर और इससे रिलेटेड जो मीनिंग्स थे ओरिएंटलिज्म में, और कल्चर और एम्पिरियलिज्म को उसने बड़ा डिटेल डिस्कस किया और उसने उनको वेस्टर्न थॉट को ट्रूली एक्सपोज किया कि वो क्या सोचते हैं और अरेबियन पीपल के बारे में और ईस्टर्न पीपल के बारे में और दूसरे कॉन्टिनेंट के बारे में वो क्या सोचते हैं कि कैसे वो इन्फीरियर हैं। ये पैदा हुआ 13 अप्रैल 1901 को और इसकी डेथ हुई है 1981 में। नाम है जैक लैकन्स। लेवी स्ट्रॉस बायोग्राफी 1829 में पैदा हुआ, 1902 में इसकी डेथ हुई है। और इसको ज़रा देखिएगा, एक वर्क है रोनल बार्थ का वर्क है डेथ ऑफ द आथर। डेथ ऑफ द आथर किसका वर्क है? रोनल बार्थ का। रोनल बार्थ किस चीज़ को डिस्कस करता है? डेथ ऑफ द आथर। डेथ ऑफ द आथर। वो कहता है कि मीनिंग तलाश करने के लिए किसी टेक्स्ट का, किसी लिखी हुई टेक्स्ट का हमें राइटर की ज़रूरत नहीं है। कहता है फिर किसकी ज़रूरत है? हमें जस्ट टेक्स्ट चाहिए। टेक्स्ट एक दफ़ा लिखी गई तो वो आथर से बिल्कुल सेपरेट हो गई। जस्ट टेक्स्ट की ज़रूरत है, टेक्स्ट को हम जैसे मर्जी इंटरप्रेट करें।